Hi guys, welcome back to my channel. I'm Arpita, CLAT aspirant, and are you also preparing for CLAT 2027 and confused about what books and resources to use? Then my friend, you have clicked on the right video. Today I'll be sharing all the books and resources which I personally use for my CLAT preparation, that too from self-study. So without any further delay, let's get into the video. So guys, for quants, I use this quantitative aptitude book by Dr. R.S. Agarwal, and I feel like it is an ideal book for every competitive exam like MAT, CAT, IIFT, IGNOU, Hotel Management, CLAT, ALIT, and every other examination. I mean, the content is very good, and the quality and quantity of question you get in this book is just amazing. In every chapter, you get around 15 to 20 solved examples with 150 to 200 questions, that too with detailed solution. I mean, what else do you need? I mean, of course you have to practice more, and for that you have to solve some good quality of mocks and sectional after this, but for basics and for beginners it is the best book and most recommended book from my side. So guys, for quants, I also use one more book which is How to Prepare for Quantitative Aptitude for CAT by Arun Sharma, and I'm not recommending this book to you. It's just that ये मेरे भैया की बुक है, ये मेरे पास थी तो मैं इससे कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाऊँ इसलिए, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय इट स्पेशली फॉर क्लैट. सो या. And guys, for legal reasoning, I'm using this LALR book by AP Bhardwaj, and it is also useful for PU, DU, BHU, IPU, SLAT, ALET, MHCT, and every other law entrance examination. And it is also a 10 on 10 book from my side. I mean, I just love this book so much. And guys, in this video, you'll also get PYQ of ALET 2425, CLAT 2425, and PU Law Entrance Test 24. The topics in this book is very detailed and well explained, and by the end of every topic you will get some practice questions which help you understanding more, and the quality of questions is also amazing, and it is also a 10 on 10 book from my side and must recommended book for your CLAT preparation. So guys, for logical reasoning, I am using this A Modern Approach to Logical Reasoning by Dr. R.S. Agarwal, and for me it is a very useless book, and I'll tell you why I'm saying this. मैं इस बुक को लेना नहीं चाहती थी, बट मेरे को और कोई बुक मिली नहीं तो मेरे को मजबूरन ये बुक लेनी पड़ी, अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड दिस बुक टू यू. सो या. And guys, for reading comprehension, I use this A Modern Approach to Verbal and Non-Verbal Reasoning by Dr. R.S. Agarwal, and it is a must recommended book also. And मैं क्यों कह रही थी ना कि लॉजिकल रीजनिंग की बुक यूजलेस है मेरे लिए, बिकॉज जो उसमें जितना कंटेंट और क्वेश्चंस है ना, वो सारी क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएगी एज इट इज़. एक भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं है, एज इट इज़ मिल जाएगी. तो मैंने ना ये दोनों बुक साथ में ली थी, बट मैंने पहले कंटेंट देखा नहीं था, अदरवाइज मैं नहीं लेती वो बुक, तो दैट्स वाई that is a waste of money. So yeah. So guys, for current affairs, I'm using this CLAT Express from LPT, and मैंने पहले बता रखा है, मैंने हर एक कोचिंग का कंपेंडियम यूज़ करा है, whether it's Legal Edge, 12 Minutes to CLAT, PW और any other coaching, बट जो सबसे ज़्यादा ठीक लगा मेरे को वो है CLAT Express. एंड देखो, कंपेंडियम तो क्या है ना, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है. आपको शायद CLAT Express नहीं, CLAT पोस्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आए तो आप वो यूज़ करना, मैं बस अपना बता रही हूँ. सो गाइज, फॉर द न्यूज़पेपर आई रीड द हिंदू, एंड मैंने ना बहुत बार ट्राई करा है कि मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के देखूँ, क्योंकि सब बोलते हैं कि उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं ना वो एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं, बट आई डोंट लाइक दैट. मतलब मेरे को ना वो समझ ही नहीं आता न्यूज़पेपर, ऑल दो आई एम अ बिगनर ऑल्सो. ठीक है, तो इफ़ यू आर ऑल्सो अ बिगनर तो ट्राई द हिंदू, ये आपको अच्छे से समझ आएगा, और जो इसमें एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं ना वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं. सो या, आई यूज़ दैट. एंड गाइज, फॉर vocab, यू नो द अल्टीमेट बुक, इट इज़ वर्ड पावर मेड ईजी. इसके बारे में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, बिकॉज एवरी वन नोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस बुक. सो या, आई यूज़ दैट. And guys, to be honest, I don't use books that much. I mean, I only rely on my self-made notes. मेरे जो अपने नोट्स होते हैं ना वो सफिशेंट होते हैं पढ़ने के लिए, एंड मैं बुक्स बहुत कम यूज़ करती हूँ. जब लगता है कि नहीं, थोड़ी बहुत कुछ कमी आ रही है मेरे नोट्स में, तब जाके मैं वो बुक्स यूज़ करती हूँ. वो भी इन्फॉर्मेशन मैं नोट्स में बाद में लिख लेती हूँ, तो मेरे को बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मेरे नोट्स इतने डिटेल्ड और वेल एक्सप्लेन्ड होते हैं इस वजह से. एंड या, मैं आपको कभी दिखूँगी भी नहीं बुक्स से पढ़ते हुए, बिकॉज मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती. बट इन दैट केस, अगर मेरे
मेरे को ज़रूरत पड़ रही है बुक्स की, तब मैं कौन सी बुक्स यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको बताया है। सो या एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल्सो कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, बुक्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड सेल्फ मेड नोट्स आर सफिशिएंट एंड मोर देन इनफ फॉर ए क्लैट प्रिपरेशन। सो या एंड गाइज वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू सी माय नोट्स, मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माय नोट्स, एंड अगर मेरे को कमेंट्स आएंगे तो मैं आपकी वीडियो में वो ज़रूर दिखाऊंगी। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड या बाय बाय।